Okay. So the last topic of your admin training is data management. Now we understand over here, like say, if I go to any of the object, for example, account object, and you wanted to store a new record inside the account object, what you will do is like you will click this new button and you will fill up this form. And after filling all the details inside this form, you will press this save button. So whenever you do this, one record will be inserted, right, into this object. And this is something called as with the page layout. You go to this rather, and this is something called as edit page. We know this, we are onto this edit page. And here, by filling all the information, if I press the save button, I could store one record at a time. This was one thing. Now, for example, if I open this record, now we are onto the detail layout, right? And if I wanted to perform certain editing, one thing is like, I can go back to the edit layout, or you can, you can perform the inline editing also. That is also one of the features that you could do it over here. So again, if you wanted to make certain editing, you can make the editing with the detail layout. If you wanted to delete this record, you can of course delete the record also. But see, whatever the operation we wanted to perform, we could insert a record. मैं क्या बता रहा हूँ आपको, what I wanted to say is like using the page layout customization, using the page layout, we can we can either insert a record, we can edit a record, we could delete a record, we could update the record, whatever, but that to be one record at a time, that to be one record at a time. And you using this onto any page, if you go to account, if you go to the position, anywhere you have the same thing. If you go to the page layout, if you go to the page layout, whether you are onto the edit layout or rather you are onto the detail layout, whatever, using the page layout, you could perform operation like insert, like update, like edit, and like delete also. That to be only on the one record at a time. So this is this is something which is putting us on a restriction. Okay, if I wanted to insert a record, or I wanted to edit a record, I wanted to delete certain record, I need to go one by one record at a time. Now see, for example, I'm having 25 records. Okay, whatever, one second. So in the position object, I'm having 13 records. Let's say understand these are 13,000 records. And I wanted to perform operation, a certain operation, like I wanted to update all 30,000 records. How could I do it? How could I do it? Or if I wanted to delete all 30,000 record, how could I do it? Is it require अगर editing है तो क्या मैं ऐसा मान के चलूं क्या every record I will open, I will perform the editing and then I'll save it. For all 30,000 record, do I require to open all 30,000 record one by one and perform whatever the operation is you required and then save it? So there must be some, there must be some way in the Salesforce that we could perform these operation, insert, update, delete on bulk of the record. And that is what we are going to discuss within this topic of data migration, data management. So using, you could manage the data of any of the record using page layout. That is what we have seen right now. But what is the restriction with this page layout is that, one record at a time. I could insert, I could edit, I could delete, I could update, I could perform all of the operation, what is permitted operation to me, that to be one record at a time. This is something which is, this is something a kind of restriction. This is something a kind of restriction on us. That if I go with page layout, if I go with page layout, I could perform any operation, but one record at a time. Now, this creates a problem when you wanted to perform operation in bulk. When you wanted to perform bulk operation on multiple records at a time. For example, you have 10,000 of the records, and you wanted to perform certain editing. You wanted to update 10,000 records. So obviously that time this process is not feasible. This is not possible that I'm going to open one record at a time for all 10,000 records. And then I will be performing that update operation. Of course, it is not possible because that's very time consuming. You could imagine कि अगर हम ऐसा करना चाहें, opening 10,000 record one by one at a time and then performing this update, तो बहुत वक्त लगेगा. It could probably महीना भर लग जाएगा इसके लिए शायद, है ना? So this is also not the way to do that. Page layouts supports this data management, that to be one record at a time.
So let's now understand that if I wanted to perform bulk operations, bulk insert operation, bulk edit operation, bulk delete operation, bulk undelete operation, then how could I do that? So there are 2 to 3 different ways, in the data management, we are going to learn that. There are 2 to 3 different ways to do that. One is by using the Apex programming. We are going to learn that. We are going to learn something in the Apex called as DML statement, data management, data manipulation language. And one more thing is like batch programming is also there. Probably it has not written. I think it is not written, but we are going to learn that also. When we started with the programming, we are going to start, in the next week, next Monday, we are going to start this. But, later in the development, you are going to learn something called as DML programming. We are going to learn some of the statements of the DML, like insert and the update and delete, something like that. So using that also, you could perform data management part. This DML statement, and that time we are going to learn the governor limits. If we use the DML statement, you could maximum process 10,000 records at a time. This is what the governor limit of a DML statement. So using one DML statement, you could process 10,000 records at a time. That is what the capacity of one DML statement. So we are going to learn this also, don't worry. One more thing I have not written over here, but let me describe that also. That is batch programming. Batch programming, we are going to learn something called as asynchronous programming. When we go into the development part, we are going to learn such a topic called as asynchronous programming. So there are 2 to 3 things that we are going to learn in the asynchronous programming. Like we are going to learn in the asynchronous programming, we are going to learn about batch programming, schedule programming, about queuable interfaces, about future programming. These are a few of the things that we are going to learn. तो उसमें से ना एक batch programming नाम का एक concept अपन पढ़ने वाले हैं. Using batch programming, you could process 5 millions of the record. Oh, sorry, 50 millions of the record. That 50 millions is 5 crore. इतना ज़्यादा record आप process कर सकते हो using batch programming. So that is also one of the way to perform this operation in the bulk operation whenever we wanted to perform. Then inside, inside the Salesforce, we have something called as data import as well as data export. Let me show you that. If you go to setup, and if you go to this setup and then administrator and just expand the data management, see, we expand the data management. Here you have data import wizard and data export. So using this also, you could perform bulk import and export operation, but it only comprised of importing and exporting. तो अभी कैसे ना मैं इसको यहाँ से describe ना करते हुए मैं आपको direct data loader से ले रहा हूँ, because data loader में you have inbuilt operation, built-in operation about importing and exporting. You have this option all. So the kind of operation what we are going to do in the data loader same as over here. बस यहाँ पे कैसे ना there are 2 different options. For importing you need to go with data import. For exporting, you need to go with data export. Actually, there are 2 separate operations. Data import is for importing purpose only, and data export is for exporting purpose only. So, data loader कैसा होता है? It's a combined tool. डेटा लोडर का एडवांटेज ये है कि आप इसके बाद पढ़ेंगे हम कि डेटा लोडर का जो एडवांटेज है वो ये है कि उसमें ना ये दोनों ऑपरेशन एक ही टूल पे अवेलेबल है. यहाँ पे यू हैव 2 सेपरेट ऑपरेशंस, डेटा इंपोर्ट एंड डेटा एक्सपोर्ट. So one assignment here I would like to give everyone is like, after completing this today's topic, I'm going to give you one assignment. You need to find out the differences between this data import export wizard and data loader. That will be one of the assignment, and it's actually obviously it's whatever the assignment I have given you, that obviously are the interview questions. Okay, so that is what the thing I'm expecting. ये इस topic पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं assignment देता हूँ. So this data import and the export, these are all also one of the tool that to be inside Salesforce. This actually present inside the OR. You see in the data management, we have this import as well as export option. So using this also, we can perform bulk import and export operation, that to be on 50,000 of the records. ऐसा रहता है. But let's understand what exactly, today's, the agenda of today's meeting, what we are learning right now is actually data loader. So basically data loader क्या है? So data loader is first of all a Salesforce. This is the only on-premise tool. हमने पढ़ा था जब whenever I started this, तो मैंने आपको बताया कि the Salesforce is completely a cloud solution. इसमें इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, राइट? एंड यू हैव विटनेस्ड कि हमने पूरा एडमिन खत्म किया, आज हमारा फाइनल डे है. तो आज मैं इकलौता ऐसा सेल्सफोर्स का टूल है जो आपको मैं बता रहा हूं कि जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. दिस इज द ओनली ऑन प्रीमाइस टूल सो फार.
सेल्सफोर्स का डेटा लोडर, ठीक है। तो डेटा लोडर कैसा होता है, सबसे ऑफ ऑल इट लुक्स लाइक दिस डेटा लोडर। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, मैं इंस्टॉलेशन का जो स्टेप्स है वो आपको बता देता हूँ, सो दैट आप सभी लोग इसको इंस्टॉल कर पाओ। तो एक्चुअली बिफोर यू इंस्टॉल द डेटा लोडर, योर सिस्टम मस्ट हैव अ जावा डेवलपमेंट किट, जेडीके जिसको बोलते हैं, या जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो इसके पहले कि आप डेटा लोडर इंस्टॉल करो, एज अ प्री रिक्विजिट ऑफ दिस टूल, यू नो यू नीड टू इंस्टॉल जेडीके। व्हाई, मैं बताता हूँ आपको। वंस आई स्टार्ट डेटा लोडर, सी सबसे पहले ना ये जेडीके चेक करता है। सी Java JR11 or data loader requires, some written. Let me show you that. Here it has been written clearly. Here it has been written. Data loader requires Java runtime environment 11 or later. 11 या उसके बाद का, मतलब अगर आप 10 इंस्टॉल करोगे तो नहीं होगा काम। You need to install precisely JRE11 and later version. Okay. So checking if it is installed or not. तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपका डेटा लोडर काम नहीं करेगा। So that is why as a prerequisite, if you wanted to use data loader, if you wanted to install data loader, first of all, you should install Java runtime environment. तो वो कैसे करना, वो सारी चीजें मैंने लिख के दी, सारी लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है। You just don't require to worry about everything. ठीक है, just copy this link and paste it onto your browser. This is the link you need to follow, every one of you. So यहाँ पर जाएं आप इस वेबसाइट पे azul.com पे, and here you will be finding जो JRE का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा अभी। Yes, so Windows Zulu 7. This is the latest version actually. This one is the latest version, and ठीक है, तो आप यही वाला इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं आपके, जिप और MSI होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। तो आई रिकमेंड यू गो विद दिस। आप डायरेक्ट ना MSI फाइल इंस्टॉल करो। तो इससे क्या होता है, इफ यू जस्ट इंस्टॉल इट, थोड़ा सा बड़ा फाइल होता है, इट्स ऑलमोस्ट 164 MB का ये फाइल होता है। ये जो फाइल है इट्स ऑलमोस्ट 164 MB का ये फाइल होता है। ये इंस्टॉल करने के बाद में व्हेन यू रन दिस फाइल, आई एम प्रोबेबली हैविंग दैट विद मी, Zulu, ठीक है। तो इस तरह से अनजिप होता है ये फाइल, ठीक है। एंड इसमें आपको डायरेक्टली यू विल गेट द लिंक टू, जैसे वो अनजिप करोगे आप, ये अनजिप किया हुआ है, आपको डायरेक्टली MSI फाइल, हाँ ये ज़ूम इंस्टॉलर, ये लाइक दिस, यू विल गेट वन इंस्टॉलर ओवर हियर, सी Zulu, ये ऐसा इंस्टॉलर मिलता है आपको, बराबर। तो ये कब होता है, जब आप MSI फाइल डाउनलोड करते हो। तो इसमें आपने क्या करना है कि MSI ही डाउनलोड करना, तो डायरेक्ट आपको इंस्टॉलर मिल जाता है इस तरह सा। एंड व्हेन यू रन दिस, मेक अ डबल क्लिक ऑब्वियसली। तो ये आपको फिर इसके बाद के जो स्टेप्स हैं, तो ये तो हर कोई जानता है कि नॉर्मली जैसे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, बिल्कुल आपको नेक्स्ट 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 जो भी आता है वहां पे वो क्लिक करते चलना है। सो दिस विल डू व्हाट, इट विल इंस्टॉल JRE। ये आपके इसमें JRE इंस्टॉल कर देगा, Java runtime environment, ठीक है। तो एज एन प्री रिक्विजिट, स्टेप नंबर 1 इज लाइक, the first one is like you first of all require to install JRE। आपको JRE इंस्टॉल करना पड़ेगा, Java runtime environment या Java development kit जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो this is your step number 1। now after this second step is you need to install data loader। तो अब डेटा लोडर कहाँ से इंस्टॉल करना, राइट। द क्वेश्चन विल बी लाइक कि अगर ये स्टेप नंबर 1 है तो डेटा लोडर कहाँ से इंस्टॉल करना। तो एक मिनट मैं उसको सीरियलाइज कर देता हूँ सही तरह से। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डेटा लोडर को। आपको कुछ गूगल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आफ्टर दिस आफ्टर दिस वंस दिस स्टेप हैज बीन डन, नाउ यू नीड टू गो विद दिस, ठीक है। लेट्स मेक दिस एज टू बी स्टेप नंबर 1 and let's make this step number 2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, once you install this Java runtime environment, जब एक बार आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए, just follow this link, ठीक है। उसके बाद में डेटा लोडर इंस्टॉल करना है आपको। सेकंड स्टेप इज इंस्टॉलिंग द डेटा लोडर। तो डेटा लोडर इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ गूगल नहीं करना है ना, यू नीड टू गो विद दिस।
ठीक है, यू नीड टू गो विद दिस। आपको ये नेविगेशन फॉलो करना है। तो जब आप ये नेविगेशन पे आओगे, ठीक है, तो डेटा लोडर्स के ना दो फ्लेवर्स है, दो फ्लेवर यानी कि दो अलग अलग फाइल्स होती हैं। एक होता है आपका विंडोज के लिए और दूसरा होता है मैक के लिए। तो जिनके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये वाला फ्लेवर लेंगे, ये वाला EXE फाइल लेंगे, और फिर जो एप्पल यूज करते हैं तो फिर वो ये लेगा, मैक फाइल लेगा। तो लेट मी शो यू दैट। तो यू गो टू योर सेल्सफोर्स में वापस आइए, और सेल्सफोर्स में वंस अगेन यू एक्सपैंड दिस डेटा मैनेजमेंट। इन द डेटा मैनेजमेंट से हियर द बॉटम मोस्ट डेटा मैनेजमेंट में सबसे नीचे आप आओ, यहाँ पर आपको दिख रहा है डेटा लोडर, है ना। जस्ट क्लिक ऑन दिस डेटा लोडर। तो जब आप डेटा लोडर पे क्लिक करते हो तो ये पर्टिकुलर पेज ओपन होता है, और इट विल आस्क यू कि आपको दिस डाउनलोड डेटा लोडर फॉर विंडो एंड डाउनलोड डेटा लोडर फॉर मैक, दीज आर द टू फ्लेवर। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन है, अगर आप चाहो तो डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप विंडोज ले रहे हैं तो विंडोज का इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करिए, अगर मैक ले रहे हैं तो मैक का इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करें, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्लिक मारना है, दिस इज द हियर यू नीड टू मेक अ क्लिक। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इस तरह से एक डाउनलोडर जो है जिप फाइल में आपके पास में रेडी हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको अनजिप करना पड़ता है उसको। Somewhere it has been written. ठीक है, तो इसके बाद आपको अनजिप करना पड़ता है उसको। कितने बड़ा फाइल है मैं देख लेता हूँ, सेकेंड। 5G पे डालता हूँ मैं, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है, लेट्स नाउ डाउनलोड, अभी जल्दी हो जाएगा। देखिए, तो फिर ये जब फाइल आपकी जिप फाइल आ जाती है, 1 सेकेंड, ठीक है। वॉइस वगैरह क्लियर है गाइस, एक बार बताओ, बिकॉज मैं नेटवर्क स्विच किया है। सब वॉइस वगैरह क्लियर है सबको? यस ठीक है, सर। ओके फाइन। तो एक बार जब आप ये डाउनलोड कर लेते हो तो इस तरह से ये जिप करके मिलता है आपको। इसको यहीं पर आप जहां पर भी आपके डाउनलोड हुआ है, आप पर्टिकुलरली उसको एक्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये फिर एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको उसका EXE फाइल मिलता है, जिसको आपको रन करना है और सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉलो करना है जैसे इसके पहले जो आपने किया था, यू नीड टू फॉलो द सेम प्रोसेस। ये मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एक्चुअली, इसलिए ऐसा नजर आ रहा है ये डेटा लोडर। ये देखो, ये फाइल जनरेट हो जाती है इसकी, ये वाली, ठीक है। एंड यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल फाइल, आपको इंस्टॉल कर लेना पड़ता है इसको। तो ये बिल्कुल वैसी स्टेप है जैसे इसके पहले आपने अभी देखा, जब JRE जब इंस्टॉल किया। तो ये समझ लो कि ये है स्टेप नंबर 1 और 2। तो सबसे पहले आप, इसके पहले कि आप डेटा लोडर इंस्टॉल करो, आपको सबसे पहले जावा रन टाइम एनवायरनमेंट लेना पड़ेगा, जो लेटेस्ट है वो ले लो। बस जावा JDK 11 की बात कर लेना, JDK 10 नहीं। तो आप जब अगर इस वेबसाइट पे जाओगे तो वैसे भी यहाँ पे सबसे टॉप पे जो है वो लेटेस्ट वर्जन होता है, तो वही डाउनलोड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी फिर आपको। उसके बाद स्टेप नंबर 2, आप डेटा लोडर डाउनलोड कर दिए। तो डेटा लोडर डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सेल्सफोर्स के पास ही आपका, यहीं पर आपके और के अंदर ही इसका लिंक मौजूद है। तो गो टू सेटअप, गो टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर में जाने के बाद डेटा मैनेजमेंट को एक्सपैंड करें। डेटा मैनेजमेंट के अंदर सबसे नीचे जो लिंक है वो है डेटा लोडर की लिंक। यहाँ से आप अपने लिए, अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये डाउनलोड करें, अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो आप मैक के लिए ये डाउनलोड करें, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसा भी है, इफ यू वांटेड टू लर्न कि अगर आपको देखना है कि क्या स्टेप्स हैं, तो ठीक है, फिर आप ये इंस्टॉलेशन गाइड डाउनलोड कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू आउट। तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर आप जब ये फाइल डाउनलोड करते हो, यू डाउनलोड द फाइल, तो उसके बाद में फिर क्या क्या स्टेप्स हैं इंस्टॉल करने की, वो आपको पूरी यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएंगी। तो अगर बाय द वे तकलीफ जा रही है तो फिर ये पेज फॉलो करो, ठीक है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि किस तरह से आपको डेटा लोडर इंस्टॉल करना है, ठीक है, किस तरह से आपको डेटा लोडर इंस्टॉल करना है। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यू नीड टू हैव JRE वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पूरा दिया हुआ है आपको कौन सी फाइल जो है, कौन सी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। डबल क्लिक द इंस्टॉल डॉट बैट, है ना, बैश फाइल है, उसको इंस्टॉल करना है, क्या डबल क्लिक करना है। सो एवरीथिंग हैज बीन रिटन, स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड है यहाँ पे। तो ये बेटर है कि आप इसको फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो,
जब ये फाइनली सब सेटअप हो जाए, पूरा रेडी हो जाए, तब आप जो है, अब आप डेटा लोडर पे चलते हैं। तो आप डेटा लोडर क्या क्या कर सकता है? तो डेटा लोडर कैन परफॉर्म ऑल दिस ऑपरेशन: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑल, अपसर्ट, हार्ड डिलीट, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो आइए एक दो ऑपरेशंस मैं आपको बताता हूँ और कुछ मैं आपको एज एन होमवर्क भी देने वाला हूँ यहाँ पे। आइए एंड गो विद दिस थ्योरी। बाकी जो है वो उसमें थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो थ्योरी पढ़ लेना, मैं डायरेक्टली आपको इंसर्ट, अपडेट ऑपरेशंस पे लेके चलता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है। 1 सेकंड में लॉगिन का प्रोसेस एक और है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तीसरी चीज और है कि किस तरह से लॉगिन करना है डेटा लोडर में। तो उसके लिए हमको अपने सिक्योरिटी टोकन्स जनरेट करने पड़ते हैं। 1 सेकेंड, शेयरिंग स्टॉप किया मैंने बिकॉज क्रेडेंशियल्स कॉपी पेस्ट करना है। मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, सब हो जाता है। वैसे सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए तकलीफ तो नहीं जाएगी आपको। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए। वन सेकेंड, शेयर द स्क्रीन। ओके, तो जो आपका ऑर्ग है 201, उसका ये पासवर्ड है। ठीक है, जो अभी तक यूज करता था मैं। अब डेटा लोडर पे लॉगिन कैसे करते हैं? ठीक है, आप अगर देखो, मैं डायरेक्ट, जैसे आपका इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद में अगर आप डायरेक्टली लॉगिन करना चाहोगे ना, डायरेक्टली आप ऑपरेशन करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, कैसे? अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से मुझे एक विंडो खोलेगा और कहेगा कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ तब भी ये चीज, मतलब अगर आप डेटा लोडर इन शॉर्ट यूज करना चाहते हो, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहो, आप एक्सपोर्ट करो या फिर आप डिलीट करो या फिर आप इंसर्ट करो, मतलब जो भी ऑपरेशन डेटा लोडर कर सकता है, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, हार्ड डिलीट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और कोई भी ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं लॉगिन में दो है यहाँ पे, एक ओ ऑथ होता है, दूसरा पासवर्ड। ओ ऑथ एग्जैक्टली क्या होता है ये हम इंटीग्रेशन के टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे। पासवर्ड में करना क्या है, आप सोचेंगे कि मुझे अपना यूजर नेम डालना है और अपना पासवर्ड डालना है और मैं लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये चीज करके बताता हूँ, है ना। ये है आपका यूजर नेम, दिस इज योर यूजर नेम, ये मैंने यूजर नेम डाला यहाँ पे। सेकेंड, अब मैं एंटर करता हूँ पासवर्ड, जैसे आप सभी की पासवर्ड है वैसे ये पासवर्ड, और मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो ये वेरीफाइंग सेल्सफोर्स नेम, एरर आ गया, चेक योर यूजर नेम एंड द पासवर्ड इफ यू स्टिल कांट लॉग इन। तो आप सोच रहे हो कि मैंने तो सही क्रेडेंशियल्स डाले, बस यही क्रेडेंशियल्स डाल के आज तक हमने सेल्सफोर्स पे लॉगिन किया। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पर हूँ, इस और के अंदर हूँ, तो यही है वो क्रेडेंशियल जो मैंने यूज किया था, लेकिन स्टिल ये काम क्यों नहीं कर रहा है? तो एक्चुअली डेटा लोडर पे थोड़ा सा अलग लॉगिन है। तो वो कैसे है अब वो सिखा रहा हूँ। सो ध्यान से देखो इस चीज को, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप अगर सब जाओगे ना तो कभी दिक्कत नहीं जाती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा कि दो तरह के ऑथेंटिकेशन होते हैं, ओ ऑथ और पासवर्ड। ओ ऑथ अभी आपको नहीं समझेगा, इसलिए ज्यादा सोचो भी मत, इसमें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट का कंसेप्ट है जो हम एक्चुअली पढ़ने वाले इंटीग्रेशन में। ठीक है, फिलहाल हमको सिंपल चाहिए पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो पासवर्ड में क्या होता है कि आपका आईडी तो यही रहेगा, आईडी तो मेरा यही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो मेरा पासवर्ड है ना, ये जो मेरा पासवर्ड है जिसमें मैंने सिर्फ अभी वो पासवर्ड डाला जो कि आज तक मैं यूज करता था, ये था वो पासवर्ड। सिर्फ इतना डालने से काम नहीं बनता है, सिर्फ इतना डालने से काम नहीं बनता है। एक्चुअली योर पासवर्ड शुड बी योर पासवर्ड ऑफ द और प्लस सिक्योरिटी टोकन, प्लस सिक्योरिटी टोकन। तो अब सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटी टोकन क्या होता है? तो सिक्योरिटी टोकन कहां से आएगा? सिक्योरिटी टोकन भी आपको सेल्सफोर्स ही जनरेट करके देता है। ठीक है, कैसे, मैं बताता हूँ। सिक्योरिटी टोकन जो होते हैं वो हमको हमारी ईमेल आईडी पे आने वाले हैं। तो इस ऑर्ग के लिए, ये पर्टिकुलर ऑर्ग जो है उसके लिए जो ईमेल आईडी है 201, इसको मैं लॉगिन करके रख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को सेल्सफोर्स अभी एक सिक्योरिटी टोकन भेजने वाला है। ठीक है, आइए, तो सिक्योरिटी टोकन कैसे जनरेट करना, उसकी ये सारी स्टेप्स मैंने लिख रखी हैं। आपको अपने सेल्सफोर्स अकाउंट पे लॉगिन करें जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। आप अपने नाम पे क्लिक करें, माय सेटिंग्स में जाएं, उसके बाद पर्सनल्स पे जाएं और रीसेट सिक्योरिटी टोकन पे जाएं। और आपको रीसेट सिक्योरिटी टोकन करने के बाद आपका जो टोकन जनरेट होता है दैट विल बी सेंड ऑन टू योर ईमेल आईडी। अब ये क्या प्रोसेस है, व्हाट इज दिस प्रोसेस, आइए देखते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने ऑर्ग में जाना है, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ। इसके बाद में आई नीड टू क्लिक ऑन दिस माई नेम। उसके बाद में मुझे माई प्रोफाइल्स जो है, ठीक है,
माई प्रोफाइल है, माई सेटिंग है, माई सेटिंग, सॉरी। सो यू नीड टू गो विथ माई सेटिंग्स। माई सेटिंग्स में जाने के बाद पर्सनल जो है, पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल को एक्सपैंड करो। पर्सनल को एक्सपैंड करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखो, रीसेट माई सिक्योरिटी टोकन, दिख रहा है? ये ऑप्शन पे क्लिक करो, ठीक है। सो ये आपसे पूछेगा कि मतलब रीसेट करना है क्या, वाकई में रीसेट करना है क्या, तो ये सब वार्निंग्स है। You just click on this reset security token. We sent a new security token onto the email address. क्या आपने जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है SFDC ट्रेनिंग बैच 201 का, उस पर आपको सिक्योरिटी टोकन हमने भेज दिया है। सो लेट्स गो टू दिस ईमेल आईडी। यहाँ पे देखो, आपको support@salesforce की तरफ से आपको एक ईमेल आया हुआ है, और ये है आपका सिक्योरिटी टोकन। इसको टाइप नहीं करना कभी भी, इसको कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया। अब मैं चलता हूं मेरे पासवर्ड पे, ये है मेरा पासवर्ड, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि इस पे लॉगिन करने के लिए, डेटा लोडर पे लॉगिन करने के लिए आपका पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड प्लस सिक्योरिटी टोकन। पासवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे, ये देखो, ये मेरा पासवर्ड है। इसी के ठीक आगे में कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। अब ये बनता है एक्चुअली पासवर्ड, ठीक है। ये बनता है आपका पासवर्ड, एंड यूजिंग दिस पासवर्ड यू नीड टू लॉग इन। अब आप इसको कॉपी करो, डेटा लोडर पे चलो, और पासवर्ड में इसको पेस्ट कर दो। नाउ ट्राई टू लॉग इन। अब आप लॉग इन करो। So 01, restart this once again. And let me paste it over here. Login.salesforce.com. लॉगिन सक्सेसफुल, ये देखो यहाँ पे लिख के आ चुका है, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। सो इसका मतलब अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब लॉगिन हो गया है। अब मैं एक एक करके ऑपरेशन सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सट्रैक्ट करना सिखा रहा हूँ। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है एक्सट्रैक्ट कैसे करना, एक्सपोर्ट कैसे करना, डेटा कैसे लेके आना, ठीक है। आइए, तो डेटा एक्सपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि इफ यू गो टू द सेल्सफोर्स, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स पे चलता हूँ। इफ आई क्लिक ऑन दिस ऑल अकाउंट्स, तो आई एम हैविंग 24 रिकॉर्ड्स, ठीक है। आई एम हैविंग 24 रिकॉर्ड्स इनटू द अकाउंट ऑब्जेक्ट। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करना मतलब देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों कर सकते हैं हम। ये फायदा है डेटा लोडर का। डेटा लोडर एक ऐसा टूल है जिसमें आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब इंसर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट करना मतलब भेजना, बाहर भेजना, ठीक है। तो यहाँ सेल्सफोर्स से बाहर भेजना, सेल्सफोर्स से एक्सपोर्ट करना मतलब जो कि सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट में है वहां का डेटा लेके आना, बाहर लेके आना। तो ये जो डेटा अपने को मिलता है ये CSV फाइल पे मिलता है। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, एक्सेल फाइल पे मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करो आप, हमेशा सबसे पहले एक्सपोर्ट करो। उससे क्या होता है कि आपको एक ऐसी ऐसी CSV फाइल मिलती है जिसमें सारे आपके कॉलम्स के नाम मिल जाते हैं। तो इसके पहले की इंसर्ट करो। हमेशा मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि सबसे पहले आप एक्सपोर्ट किया करो। आइए, तो मैं देखो अकाउंट में 24 रिकॉर्ड से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। किसका किसका एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम आ जाते हैं, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो। तो यहाँ सारे नाम नहीं होते हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंट यूज किया है वो। अगर आपको सारे नाम चाहिए तो फिर यहाँ देखो, शो ऑल सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, यू क्लिक ओवर हियर। अब आपको सारी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नाम आएंगे। अब ये लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, ये लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसको मैं फिर से हाइड कर देता हूँ और फिलहाल इसी लिस्ट पे जाता हूँ जो फ्रीक्वेंटली यूज हुए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यूज हुए वो सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम आ रहे हैं। आई एम सिलेक्टिंग अकाउंट, मुझे अकाउंट से डेटा एक्सपोर्ट करना है। एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे हम सारी फाइल्स लेके आएंगे। 201 के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। सो उसका नाम जो है, नाम मैं देता हूँ उसको अकाउंट
extract1 नाम से, ठीक है। और इसे मुझे स्टोर करना है, फोल्डर पाथ दे दो। देखो अभी ये C: लिया हुआ था इसने, पर जो फोल्डर हमने बनाया है वहां पर, सो 201 के अंदर मैंने एक फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर ही जाएगा। तो अब इसने पूरा पाथ ले लिया यहाँ पे कासिम सेल्सफोर्स, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट कौन कौन सी फील्ड्स आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ती है। वन बाय समझो, मैं एक से दो चीजें करके बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अकाउंट की सारी फील्ड्स, ये सारी फील्ड्स हैं अकाउंट की। आपको कौन कौन सी फील्ड एक्सट्रैक्ट करना है, सारी। अगर आपको पूरी करनी है तो सिलेक्ट ऑल करो, ठीक है। अगर वो नहीं करनी है तो फिर दूसरी। तो ऐसा करते हैं, अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, एक्टिव स्टेटस चाहिए, एनुअल रेवेन्यू भी चाहिए, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग सिटी, बिलिंग कंट्री, बिलिंग स्टेट, बिलिंग स्ट्रीट। या नीचे में देखो आप अपने आप क्वेरी बनती चली जा रही है, समथिंग कॉल्ड एज SOQL, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ये पढ़ने वाले अपन, लेकिन डेवलपमेंट पे तो अपने आप क्रिएट होती जाती है यहाँ पर से। फैक्स चाहिए मेरे को, इंडस्ट्री भी चाहिए, एंड फोन नंबर, रेटिंग, नेम नहीं आया ना अभी तक, नेम यहाँ कहीं होगा, नेम, अकाउंट नेम, एक्टिव स्टेटस, ठीक है। इतनी फील्ड्स और कोई है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। फोन, रेटिंग, SLS, शिपिंग नहीं चाहिए, टाइप, वेबसाइट, ठीक है। इतनी फील्ड्स चाहिए मुझे, अकाउंट नंबर, ओके। सो हाँ, तो आपको जितनी फील्ड्स एक्सट्रैक्ट करनी है वो सारा आपने यहाँ पे लिख दिया, जितनी फील्ड्स का डेटा चाहिए। उसके बाद वंस यू हैव डन विद दिस, फिनिश करो इसको। तो ये आपको एक बोलेगा कि यू हैव चूजन टू परफॉर्म, वार्निंग वगैरह देता है और कुछ नहीं, ठीक है। आप यस करो उसको, आगे बढ़ जाओ। सिलेक्टिंग कंपाउंड डेटा नॉट सपोर्टेड, एनीवेज मैं फिर से करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपोर्ट अकाउंट, let me go and this name as account extract number 1 and export count one CSV and then browse, कहाँ पे डालना चाहिए ये फाइल, फिर से save it, next, yes, start with the name, ID, name, industry and facts, हटा दो, industry, नंबर नहीं चाहिए, एक्टिव स्टेटस, annual revenue, and let me go with few of the fields like ownership, phone, ठीक है, finish, yes। The operation was fully completed. There were 24 successful extractions with 0 errors. तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा है ना, ऑब्जेक्ट ओके करता हूं मैं इसको। ऑब्जेक्ट में आप देखो, मैंने आपको बताया कि 24 रिकॉर्ड्स थे ना, वो रिकॉर्ड आपका फैच हो चुका है। अब वो कहां पर अवेलेबल है, जो पाथ आपने दिया, ये पाथ दिया था डेटा लोडर, और ये वाली फाइल। अब मैं ये फाइल ओपन करता हूँ और आपको वो सारा डेटा दिखाता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने यहाँ पे सेल्सफोर्स ऑर्ग में से अपनी ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। लेट मी डू द फॉर्मेटिंग। one more thing, others, bold, okay. चलो, तो यहाँ पे देखो, ये है आपका पूरा डेटा, ये है आपका पूरा डेटा जो कि आया।
ठीक है, ये हैं सारे 24 रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेम, उसके बाद में आप अब इसको जैसा आगे पीछे करना है वो हम कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न, कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। अब मैं इंपोर्ट करना सिखाता हूँ आपको। डेटा लोडर का फिर से एक चीज, डेटा लोडर में बेनिफिट क्या है कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब इंसर्ट करना, ये दोनों एक ही टूल पे अवेलेबल है। और वही जैसा मैंने आपको कहा कि डिफरेंस क्रिएट करना है, तो डिफरेंस क्रिएट करना है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड और डेटा लोडर का। तो यहाँ पर कैसे दो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इसके लिए। डोमेन नेम, डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट अगर हम चलते हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस, डेटा इंपोर्ट के लिए अलग ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का अलग ऑप्शन है। अभी आपने एक्सपोर्टिंग सीखा, ये वाला ऑप्शन सीखा है आपने, अभी जो आपने किया ना वो ये किया। अगर आप इस टूल से भी करते जाते तो सेम होता है आपका एक्सपोर्ट नाउ। तो पहले आपको फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस किस को कौन सी ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करना है मेरे को। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे अभी इंक्लूड ऑल डेटा, तो आपको पहले अकाउंट ढूंढना पड़ेगा, वो सिलेक्ट करो तो। ठीक है, वो सिलेक्ट करने के बाद में फिर सेम प्रोसेस है, फिर आप स्टार्ट एक्सपोर्टिंग करो तो वो फाइल जनरेट होगी, वो फाइल फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी, सेम ऐसे ही एक फाइल। तो वो सेम ही है, मतलब आप ऑपरेशन वाइज ट्राई करोगे तो दोनों सेम रहेगा। लेकिन डेटा लोडर का फायदा क्या होता है कि आपको एक ही जगह पे सारी चीज मिल जाती है, और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता, यहाँ पे अपडेट भी होता है, अपसेट भी होता है, इवन डिलीट भी होता है। तो एक दो तीन ऑपरेशन जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब ये हमने सीखा कि कैसे डेटा लेके आना सेल्सफोर्स से अपने सिस्टम पे, सीएसवी फाइल पे। अब दूसरा सीखते हैं कि कैसे यहाँ से डेटा डेटा लोडर पे डालना। तो अब देखो, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे अगर मुझे 10,000 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो मैं ऐसा एक एक रिकॉर्ड थोड़ी ना इंसर्ट करूंगा, है ना, ऐसे एक इंसर्ट करूंगा फिर दो फिर तीन, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं एक ही बार में कैसे बल्क में इंसर्ट करना वो आपको सिखा रहा हूँ। तो अब हम इंसर्ट ऑपरेशन पे जा रहे हैं। तो हमें करना क्या होता है इंसर्ट ऑपरेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करना है तो आपको जाना तो यहाँ पर ही है, इंसर्ट पर ही। लेकिन एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे आपको कहाँ इंसर्ट करना है, अकाउंट पे इंसर्ट करना है, तो आपको ना एक सीएसवी फाइल बनानी पड़ती है पहले ही। देखो, चूज सीएसवी फाइल, कौन सी सीएसवी फाइल से आप इंसर्ट करो। तो इसलिए ना हर किसी को मैं क्या बोलता हूँ कि भले ही तुमको इंसर्ट ऑपरेशन करना है, भले ही तुमको इंसर्ट करना है, तुम पहले एक्सपोर्ट कर लो। क्यों एक्सपोर्ट करो, आपको ये मिल जाता है, ये क्या है, फील्ड्स नेम है। किसकी फील्ड्स है, आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट की, राइट। तो आपको इंसर्ट करना है, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी फाइल को यूज करूंगा। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ और ठीक है, अब इंसर्ट कैसे करना, तो उसके लिए हमको एक सीएसवी फाइल बनानी पड़ती है। तो मैं यही फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी इस फाइल को रीनेम करता हूँ, अकाउंट इंसर्ट नंबर 1। ठीक है, नाउ लेट्स ओपन दिस फाइल। अब इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ और इसके थ्रू मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, इसके थ्रू मैं इंसर्ट करने वाला हूँ। तो जब एक चीज सुनो, जब हम डेटा नया इंसर्ट करते हैं तो आईडी इंसर्ट करने के बाद जनरेट होती है। ठीक है, जैसे अभी एक रिकॉर्ड है तो ये इसका आईडी है, ये कब जनरेट हुआ, जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उसके बाद आईडी जनरेट होता है। आप पहले से आईडी जनरेट नहीं कर सकते ना, तो मैं इस कॉलम को हटा देता हूँ, आई एम डिलीटिंग दिस कॉलम। ओके, एनुअल रेवेन्यू जो दिख रहा है उसकी वजह है कि ये जनरल नंबर, नंबर डेसिमल प्लेसेस 0। ओके, अब दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग आपको थोड़ा बहुत सही आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, और कुछ नहीं है। एक्टिव स्टेटस, अब देखिए मैं काम करता हूँ, मैं 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, सो मैं ऐसा करता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ से लेकर सारे रिकॉर्ड जो है नीचे के, इनफैक्ट फोन नंबर को भी मेरे को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, तो मैं ये रिकॉर्ड्स डिलीट कर देता हूँ एंटायर को। ठीक है, तो मैं 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करके बताता हूँ आपको। तो आप समझो कि अगर 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकते हैं, दैट मीन्स आपके बाकी के रिकॉर्ड्स 50,000 रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट हो सकते हैं एक बार में। ठीक है, सेकेंड, cells, number, decimal places 0. Okay. So active status, banking, name,
नाम देते हैं डेटा लोडर रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 2, 4, 5, ठीक है, ओनरशिप एज इट इज। तो ये देखो क्या होता है कि हमें ये हेड्स लगते हैं कभी भी जब भी हम लोग एक्सेल शीट बनाते हैं इंसर्ट करने के लिए, तो इनके कॉलम के नेम और आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नेम जो है मैच होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा एक सलाह देता हूँ कि आपको भले ही इंसर्ट करना है, आप पहले एक फाइल एक्सट्रैक्ट कर लो। फाइल एक्सट्रैक्ट करने से फायदा क्या होता है कि आपको जो जो फील्ड्स चाहिए वो सेल्सफोर्स में उसका क्या नाम है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये कैसा स्मार्ट वर्क है। उसके बाद में फिर आपको अब जो भी रिकॉर्ड क्रिएट करना है वो, तब यहाँ तो मैं 5 रिकॉर्ड्स ही दिखा रहा हूँ आपको ना, 5 ही रिकॉर्ड्स बता रहा हूँ, बट 5 मतलब 5000, 50,000, 10,000 जितना भी है आप ये एक्सेल शीट में ड्रॉ करो और यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे आप। ठीक है, आप डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे। तो हम ये जो फाइल अकाउंट इंसर्ट इसका यूज करेंगे। पहले मैं एक बार सेल्सफोर्स में चलता हूँ और देखता हूँ कि अकाउंट ऑब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड्स हैं। 24 रिकॉर्ड्स है और मैं कितने इंसर्ट कर रहा हूँ, 5, एक और बढ़ा देता हूँ, 6 कर देता हूँ उसको। सो 6 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब 24 है अभी एग्जिस्टिंग। डेटा लोडर के थ्रू जब मैं इंसर्ट करूंगा तो 24 + 6 30 हो जाना चाहिए। आइए, सो ये फाइल मेरी बनके तैयार है। इस फाइल की मदद से मैं इंसर्शन परफॉर्म करूंगा। सो डेटा लोडर कहाँ गया, मैंने क्लोज कर दिया क्या उसको, अरे यार। एनीवेज, ठीक है। सो अब मुझे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यस, पासवर्ड हमेशा ऐसे तैयार करके रख लिया करो। आई थिंक मेरे से कुछ बटन दब गया, मैंने क्लोज कर दिया था इसको। लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो हमने इंसर्ट करना है, कहाँ इंसर्ट करना है, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। आपको सीएसवी फाइल लगेगी इसके लिए, जो कि मैंने पहले से बनाई, पहले मैंने सीएसवी बनाई, ये वाली फाइल। ठीक है, चलिए। मैं फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्राउज कर रहा हूँ, कौन सी फाइल है, अकाउंट इंसर्ट नाम से एक मैंने फाइल बना रखी है। यहाँ इस फाइल में जो भी डेटा है वो पूरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए। अब चाहे उसमें 5 है, 10 है, 1000 है, 10,000 है या 10-20,000 है, वो सारे इंसर्ट होने चाहिए। तो जितने भी इंसर्ट होंगे वो उसका भी हमको आ जाएगा। अगर बाय द वे किसी वजह से कोई रिकॉर्ड फेल होता है तो वो भी मिल जाता है आपको, यहाँ पे पूरा दिख जाएगा। ओपन किया, फाइल ले लिया इसने, फाइल का पाथ दे दिया, नेक्स्ट। ये इनिशियलाइज कर रहा है, चेक कर रहा है अभी। ठीक है, चेक कर रहा है। तो ये कह रहा है कि आपके जो ऑपरेशन है, मतलब आपकी जो फाइल है उसमें 6 रिकॉर्ड्स है। देखो, ये इनिशियलाइजेशन में पता चल जाता है, अभी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमें पता चला है कि जो एक्सेल शीट हम जो जिसके थ्रू हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो उसमें 6 रिकॉर्ड्स ऐसे ये बता रहा था। ये सो के वी आर एग्री विद दैट। अब हमें करना क्या है, यहाँ इसको बोलते हैं फील्ड मैपिंग, इसको बोलते हैं फील्ड मैपिंग। इसी स्टेप को बचाने के लिए मैं हमेशा पहले एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ताकि मैं आपको एक बहुत पते की बात बता पाऊँ। यहाँ पे ये है वो सारे करंट फील्ड मैपिंग। ठीक है, ये सारे जो इस वक्त हैं आप देख रहे हो, ये है आपके फाइल के कॉलम्स। फाइल के कॉलम्स मतलब ये वाले, ये फाइल के जो कॉलम्स हैं इसको मैप करना पड़ता है सेल्सफोर्स के साथ, सेल्सफोर्स की फील्ड के साथ। एनुअल रेवेन्यू कहाँ जाना चाहिए, इंडस्ट्री किसके साथ होना चाहिए, एक्टिव किसके साथ। तो हमने क्या किया था कि ये हमने अपने से नहीं क्रिएट करे, ये हमने पहले एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसी फाइल को यूज कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्रिएट और एडिट मैप, ये बटन पे क्लिक करें। ठीक है, ये बटन पे क्लिक करें। ये सारे आपकी फाइल के हेड्स हैं, फाइल के कॉलम्स हैं। ये सारा आपका सेल्सफोर्स है, ये पूरा सेल्सफोर्स है। ये देखो, ये अकाउंट ऑब्जेक्ट में सेल्सफोर्स में जो जो फील्ड है वो है यहाँ पे दिख रहा है। सेल्सफोर्स में अकाउंट ऑब्जेक्ट में जो जो फील्ड है वो सारी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक एक फील्ड ऐसी लानी नहीं है, ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये क्योंकि हमने इस तरह से प्लानिंग करी थी कि हमने पहले से ही फाइल के हेड सेल्सफोर्स की फील्ड के साथ सेम रखे थे। यहाँ देखो एक बटन है ऑटो मैच फील्ड। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना आप क्या होने वाला है। मैं ये बटन दबाता हूँ, ऑटो मैच फील्ड्स कॉलम, देखो क्या हुआ। फाइल के हेड के हिसाब से सेल्सफोर्स में जो फील्ड है वो ऑटोमेटिकली मैच हो गई। एक्टिव स्टेटस एक्टिव के साथ, एनुअल रेवेन्यू इसके साथ, इंडस्ट्री के साथ हो गई मैपिंग। एंड क्लिक ओके, ये स्टेप है। तो ये बेसिकली कैसा होता है, अपने से फाइल मत क्रिएट करो कभी भी। हर किसी को मैं यही बताता हूँ, जब भी मैं डेटा लोडर पे समझाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भले आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट चाहे कुछ भी करना है, पहले एक फाइल एक्सट्रैक्ट करो और जो जो फील्ड का काम है वो फील्ड लेके उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लो और बाद में उसी फाइल को यूज करो।
तो आपको मैपिंग करना बहुत आसान हो जाता है। मैपिंग में कोई भी एरर नहीं आते एज सच, ठीक है। वंस इट हैज बीन डन, क्लिक द नेक्स्ट बटन। ये पूछ रहा है कि मैं जो सक्सेस और एरर दो फाइल जनरेट होती है वो कहाँ सेव करूँ, तो जो डिफॉल्ट पाथ है अपना उसी को रहने दो, एंड देन फिनिश करो इसको। वार्निंग देगा, यस करो, ठीक है। The operation has fully completed. There were 6 successful insert and 0. तो 6 डेटा इंसर्ट हो चुका है आपका। तो अब हम सेल्सफोर्स में चलते हैं। प्रीवियसली इट वाज हैविंग 24। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कितना डेटा है हमारे पास। देखिए 30 आ गया। ये आ गया आपका डेटा लोडर रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो ये डेटा कहाँ से आया? बाहर से। कैसे आया? डायरेक्टली आया। एक एक डेटा आया नहीं, बल्क में आया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डेटा लोडर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेटा लोडर, ऐसा है। नाउ यू ट्राई विद दिस डिलीट, अपडेट, अपसर्ट, ठीक है। इनसे ट्राई करो ये पूरा। हार्ड डिलीट मत करो, इसके लिए आपको एपीआई परमिशंस लगती है, ये छोड़ दो, हार्ड डिलीट छोड़ दो। अब ये करेगा अपडेट, अपसर्ट, डिलीट। मैं एक और चीज पढ़ाता हूँ अभी आपको, बिकॉज ये सिंपल ऑपरेशन है। एक चीज और पढ़ाता हूँ, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ एक ऑपरेशन और। बाकी आप अपडेट, अपसर्ट और डिलीट, ये 3 ऑपरेशन ट्राई करेंगे सभी लोग। दिस इज एन असाइनमेंट। अगर नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे वीडियो देखो। अपडेट, एक चीज मैं बता देता हूँ, अपडेट, अपसर्ट और डिलीट तीनों के लिए आईडीज लगेंगी आपको, आईडीज लगेंगी। जो भी डेटा आपको डिलीट करना है, ठीक है, या अपडेट करना है, मतलब ये जो फाइल मैंने एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं अभी आपको समझने के लिए, कि ये ऑपरेशन कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाए सभी को। देखो फॉर एग्जाम्पल सारा रिकॉर्ड निकाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिकॉर्ड, अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड। इसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। मतलब सेल्सफोर्स में जैसे रिकॉर्ड अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड कौन सा है? टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 2, यानी ये वाला रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड हमने डिलीट मारना है, या इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, जो भी है, ठीक है, जो भी है। अगर बाय द वे अपडेट करना है मुझे, इसकी इंडस्ट्री क्या है? बैंकिंग। इसकी इंडस्ट्री क्या है? बैंकिंग है, ठीक है। मुझे इसकी इंडस्ट्री चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल इसकी इंडस्ट्री को मुझे एजुकेशन करना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बैंकिंग इट शुड बी एजुकेशन, ये होना चाहिए। तो जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है आपको, उसकी आईडी लगेगी। तो आप पहले फाइल एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करने से और आईडी को एक्सट्रैक्ट करो, आपको आईडी मिल गया है। अब आपके पास में ना ये पूरा डेटा तैयार है। मैंने फाइल में चेंजेस किए, अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड को इंडस्ट्री एजुकेशन कर दिया। अगर मैं सेल्सफोर्स में जाता हूँ तो मुझे इसकी जो इंडस्ट्री वो क्या दिख रही है? बैंकिंग दिख रही है, राइट, बैंकिंग, बैंकिंग दिख रही है। एजुकेशन की स्पेलिंग सही है, हाँ एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसकी इंडस्ट्री जो है वो बैंकिंग है। इसको मुझे अपडेट करना है। एक रिकॉर्ड जैसा हो रहा है वैसे 1000 रिकॉर्ड भी होंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ये वाली, ये क्लोज करता हूँ, ये वाली फाइल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नंबर 1, ये वाली फाइल। इसमें आपके पास में क्या चाहिए? वो रिकॉर्ड की डिटेल। आप चाहें तो ये बाकी हटा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है अपने को यहाँ पे, बिकॉज मैं, सॉरी, मैं डिलीट ही करता है इसको, हाँ। बिकॉज मुझे जिस चीजों की जरूरत है वो सिर्फ ये, एक तो ये है कि कौन सा रिकॉर्ड है जिसको मुझे अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है, और क्या उसकी आईडी है। सिर्फ ये 3 चीजें लगेंगी आपको। तो आप बाकी कॉलम हटा सकते हैं यहाँ पे। मतलब अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 2 नाम का रिकॉर्ड है, उसकी इंडस्ट्री पहले बैंकिंग थी, मैंने एजुकेशन किया, और ये उसकी आईडी है, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीजें लगती हैं आपको अपडेट में और डिलीट में भी। डिलीट में तो सिर्फ आईडी लगती है, नाम भी नहीं लगता इनफैक्ट। तो वो आपको मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिसर्च करो, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है? अकाउंट को। तो उसके लिए सीएसवी फाइल चाहिए, सीएसवी फाइल मैंने बना रखी है, ये है मेरी सीएसवी फाइल, ठीक है। ब्राउज करता हूँ, अकाउंट एक्सट्रैक्ट नंबर 1, ठीक है, ओपन करता हूँ। नेक्स्ट, एक रिकॉर्ड है इसमें बता रहे हैं, ठीक है। मैपिंग करनी पड़ेगी, मैपिंग करो। क्या करना है मैपिंग? आप सिर्फ ऑटो मैच कर दो, ठीक है। ऑटो मैच हो गया, ओके, डन। नेक्स्ट, फिनिश। वन सक्सेसफुल अपडेट, 0 एरर। तो आपको जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो आइए चलते हैं फिर अपना सेल्सफोर्स पे, सेल्सफोर्स पे चलते हैं। ये हमारा डेटा था जिसका पहले रिकॉर्ड नंबर 2 का इंडस्ट्री थी बैंकिंग। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, अब इसकी इंडस्ट्री चेंज होकर हो गई है एजुकेशन। तो ये इस तरह से काम करता है, सिंपल है, बस आपको समझना है।
तो जैसा अपडेट किया है ऐसे ही आप अपसर्ट करिए, अपसर्ट इज इंसर्ट प्लस अपडेट, ये देखो और डिलीट करो। डिलीट के लिए एक और चीज बताता हूँ, डिलीट में सिर्फ आपको यही लगता है, इतना, सिर्फ इतना बस, आईडी, जो जो रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करने हैं उसकी आईडी। ठीक है, अगर आप ये सप्लाई करोगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, अगर आप ये सप्लाई करोगे, मैंने इसको सेव नहीं किया शायद, एक मिनट से, हाँ, आप ये सप्लाई करोगे तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा, स्ट्राइक नंबर 1, सिर्फ आईडी देना है आपको। नेक्स्ट, ऑटो मैच करो आईडी विथ आईडी, ओके, नेक्स्ट, फिनिश। द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड्स, यू नो, गो टू रिसाइकल बिन वगैरह वगैरह, ये सब बता रहा है वो, सेम चीज है। तो एक सक्सेसफुल विद 0 है, तो आपका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका। अब ये रिकॉर्ड जो है अगर मैं सेल्सफोर्स में जाके ढूंढता हूँ, ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 2, तो मुझे नहीं मिलेगा। लेट मी रिफ्रेश टेस्ट, देखो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ऐसा है। तो ये इस तरह से काम करता है बेसिकली आपका डेटा लोडर। ठीक है, तो अब एक काम ये करना है कि अपसर्ट, अपडेट, हार्ड डिलीट मत करना, बिकॉज हार्ड डिलीट के लिए आपको एपीआई परमिशंस लगती हैं। हार्ड डिलीट के लिए बल्क एपीआई हार्ड डिलीट परमिशन जो है वो इनेबल करनी पड़ती है। ठीक है, ये इनेबल करनी पड़ती है। तो फिलहाल इससे मत जाओ, ये मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू सिखाने वाला हूँ, एसक्यूएल की थ्योरी के थ्रू सिखाने वाला हूँ कि हार्ड डिलीट क्या होता है। ठीक है, ओके, सो गो विद दिस। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट मैंने बता दिया, अपसर्ट एक है जो आपको करना है, और एनीवेज आपको इन सब पे भी प्रैक्टिस करनी है। एक चीज और बतानी है मुझे, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल के बीच का डिफरेंस, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सो लेट मी वन सेकंड गो टू द अकाउंट। मैं अकाउंट में जाता हूँ, अकाउंट में जाने के बाद अगर मैं रिसाइकल बिन पे देखता हूँ तो आई हैव वन रिकॉर्ड ओवर हियर। ठीक है, अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 2, जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है, ध्यान रखना बस इसका, क्योंकि हमने ही डिलीट किया उसको। इफ आई गो टू दिस ऑल अकाउंट्स, ठीक है, अभी मेरे को 29 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। 29 कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के अंदर, एक कहाँ पर है, रिसाइकल बिन, एक कहाँ पर है आपका, रिसाइकल बिन पे। रिकॉर्ड कहाँ का है, अकाउंट का ही है। ठीक है, अकाउंट का ही है। चलो, तो एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट ऑल के बीच का डिफरेंस क्या है वो देखो आप, एक्सट्रैक्ट या एक्सपोर्ट ऑल के बीच का। तो मैंने फिर से एक्सपोर्ट किया, क्या किया, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अकाउंट से। ठीक है, ब्राउज करता हूँ, एक्सट्रैक्ट नंबर 1 पे ओवर राइट कर देता हूँ, नेक्स्ट। ठीक है, क्या उसको रिप्लेस कर देगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जो फील्ड्स चाहिए आपको वो सारी फील्ड्स आप सिलेक्ट करो। मुझे चाहिए आईडी, इस डिलीटेड भी लगेगा मुझको, इस डिलीटेड क्या है मैं बताता हूँ। नेम, ठीक है, काफी है, फिनिश। अच्छा, यहाँ पे ओपन किया हुआ है, क्लोज करना पड़ेगा। हम्म, चलो, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल के बीच का डिफरेंस देख लो, अभी आपको 2 मिनट की बात है, समझ में आ जाएगा। द ऑपरेशन इज फुल्ली कंप्लीटेड, और कितना डेटा लाया इसने, 29, बराबर है। आपके ऑब्जेक्ट में कितना डेटा है, 29 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो उतना डेटा इसने फेच कर लिया है, तो ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। अगर मैं फाइल पे जाके देखूं, अकाउंट एक्सट्रैक्ट नंबर 1 पे, तो नाउ आई कुड सी कि यहाँ पे 29 रिकॉर्ड्स है। आप देखो यहाँ पे 29 रिकॉर्ड है। ठीक है, ये है आपके 29 रिकॉर्ड सारे। अच्छा, एक बहुत खास बात नजर आ रही है, इज डिलीटेड, देखो आप, इस डिलीट में सबकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। एक्चुअली ये जो फील्ड है ना, इज डिलीटेड, ये बताता है कि रिकॉर्ड डिलीटेड है या नहीं। अगर रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है तो उसकी वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है, रिकॉर्ड डिलीटेड है तो उसकी वैल्यू होती है ट्रू। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि इन सबके लिए रिकॉर्ड जो है, ये सारे रिकॉर्ड्स के लिए इस डिलीटेड की वैल्यू क्या है, फॉल्स। मतलब इनमें से कोई भी डिलीट नहीं हुआ है, बराबर है, बिल्कुल सही बात है, डिलीट नहीं हुआ है। ये सारे रिकॉर्ड जो आए हैं, ये सारे रिकॉर्ड जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर भी अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे 29 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, वो सारे 29 रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच हो गए। ये है आपका नॉर्मल एक्सपोर्ट ऑपरेशन, नॉर्मल एक्सपोर्ट। ठीक है, अब एक्सपोर्ट ऑल समझो, एक्सपोर्ट ऑल क्या है, वही चीज फिर से रिपीट करता हूँ। अकाउंट, इस बार इसको नाम देता हूँ दूसरा, ये था एक्सट्रैक्ट नंबर 1, एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, अकाउंट एक्सट्रैक्ट ऑल, सेव इट, नेक्स्ट।
फिर से वही फील्ड चाहिए मेरे को। आई वांटेड टू हैव, एडिटिंग कर सकता हूँ क्या, हो जाएगा। टीम नेम डिलीटेड नहीं लेगा, is id is deleted and name, नेम, ठीक है, 3 ही कॉलम लेता हूँ एंड फिनिश करता हूँ उसको। अब देखो 29 नहीं है, अब कितने हैं, 30। 30 कैसे है, ओके पर बताता हूँ 30 कैसे है, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट ऑल, रीनेम करना पड़ेगा फाइल को, CSV, extract all, format ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 30 रिकॉर्ड फैच हुए हैं, इसमें से एक वो भी रिकॉर्ड है जिसके लिए इस डिलीटेड की वैल्यू है ट्रू। मतलब ये जो रिकॉर्ड था अकाउंट टेस्ट रिकॉर्ड, ये एक्चुअली डिलीटेड रिकॉर्ड है। आप जाएं रिसाइकल बिन में, आपको ये रिकॉर्ड वहां दिखेगा, टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 2, देखो, ठीक है, टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 2 जिसके लिए इस डिलीटेड की वैल्यू क्या है, ट्रू, बाकी के लिए फॉल्स। मतलब अब फाइनल बात करते हैं, पर क्या डिफरेंस समझ में आया। डिफरेंस ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको वो डेटा मिलता है जो कि डिलीट नहीं हुआ है, जो कि डिलीट नहीं हुआ है। और अगर आप एक्सपोर्ट ऑल करते हो तो आपको इनफैक्ट वो भी डेटा मिलता है उस ऑब्जेक्ट का जो कि रिसाइकल बिन का है, मतलब जो रिसाइकल बिन में है, मतलब डिलीटेड ही। तो ये डिफरेंस है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल के बीच का, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक तो ये कि हार्ड डिलीट और हार्ड डिलीट के बीच क्या डिफरेंस है। वो हार्ड डिलीट जब आप करते हो तो रिसाइकल बिन में नहीं जाता, जैसे मैंने अभी डिलीट किया एक रिकॉर्ड को तो वो रिसाइकल बिन में चला गया, लेकिन मैं हार्ड डिलीट करूंगा तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो सीधा ऑब्जेक्ट से ही बाहर हो जाता है, ठीक है। ये होता है हार्ड डिलीट, मतलब जब आप एम्प्टी रिसाइकल बिन करते हो ना विंडोज पे, वही चीज है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डिलीट एंड हार्ड डिलीट, कि आप डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में जाएगा और अगले 30 दिन तक रिसाइकल बिन में रहेगा, लेकिन अगर आप हार्ड डिलीट करते हो तो वो इमीडिएटली डिलीट हो जाता है। एक्सपोर्ट करते हो तो सिर्फ वही डेटा एक्सपोर्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट में है, जो कि डिलीट नहीं हुआ है, जिसके लिए इस डिलीटेड की वैल्यू क्या है, फॉल्स। ये बोलना इस डिलीटेड की वैल्यू क्या है, फॉल्स। और जब आप एक्सपोर्ट ऑल करते हो तो आपको वो भी डेटा मिलता है अलॉन्ग विद दिस, जो मतलब जो रिकॉर्ड में है उसके साथ साथ वो भी डेटा मिलता है जो कि डिलीट हो चुका है, मतलब जिसके लिए इस डिलीटेड की वैल्यू क्या है, ट्रू, जो कि रिसाइकल बिन में है, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑल के बीच में, ठीक है। So this completes your data migration, sorry, data migration, data management जो भी है, एंड इसको प्रैक्टिस करो। सबसे पहले स्टेप जो है आपको सबसे पहले जावा डेवलपमेंट किट जेडीके इंस्टॉल करो, और जेडीके इंस्टॉल करने के बाद में डेटा लोडर इंस्टॉल करो, और फिर डेटा लोडर से काम करना शुरू करो आप, ठीक है। एंड रीड दिस थ्योरी एटलीस्ट वंस, ये पूरा एक बार जो है, ये पूरा एक बार थ्योरी पढ़ लेना स्टेप बाय स्टेप।